So we'll continue with the IUPAC nomenclature, and we've already discussed the parts of IUPAC name. There are 5 basic parts of IUPAC name. Prefix, divided into 2 parts: primary prefix and secondary prefix, word root, and suffix. Similarly, primary suffix and secondary suffix. So these are 5 parts of IUPAC name, and out of these 5 parts, not all the parts are essential. The essential parts of IUPAC name are word root and primary suffix. So out of the 5 parts of IUPAC name, they are the maximum parts. Out of those, word root and primary suffix are the essential parts of IUPAC name. There's a reason why we call them essential, because every IUPAC name of a compound, whether big or small, branched and unbranched, however, whatever, every IUPAC name will contain these 2 parts essentially: word root and primary suffix. Word root, which tells us the number of carbon atoms present in the main chain, which have been selected as the parent chain. So at least 1 carbon will be selected as a parent chain minimum, and 1 carbon, if there's 1 carbon in the parent chain, the word root will be meth. So this word root is a part which is essentially included in the IUPAC name. और अगर हम प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, प्राइमरी सफिक्स बेसिकली बताता है कि जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या नहीं, मतलब वो अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है. तो अगर सैचुरेटेड होगा तो हम एन यूज करेंगे, अगर अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड होगा तो हम इन यूज करेंगे, अगर अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम आइन यूज करेंगे. एंड डेफिनेटली जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसमें एसेंशियली कार्बन है, यानी वर्ड रूट आ गया. और कार्बन है तो डेफिनेटली, या कोई भी एलिमेंट होता है तो डेफिनेटली बॉन्ड जरूर होते हैं. तो बॉन्ड्स अगर सिंगल बॉन्ड्स है तो एन आ गया, अगर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो इन आ गया, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आ गया. क्योंकि ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं हो सकता, ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें कार्बन ना हो, जिसमें बॉन्ड ना हो. इसलिए जब हम उनका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो IUPAC नेम में भी ये 2 पार्ट्स आएंगे: वर्ड रूट जो कार्बन एटम्स को डिनोट कर रहा होगा, और प्राइमरी सफिक्स जो बॉन्डिंग को मेंशन कर रहा होगा. Right? That is why word root and primary suffix are the essential parts of IUPAC name. The other parts may be or may not be included in the IUPAC name for particular compound. हो सकता है वो cyclic ना हो तो हम cyclo यानी primary prefix जो है वो ना लगाएं. Right? कोई functional group ना हो तो हम secondary suffix ना लगाएं. तो they are conditional. कोई substituent नहीं हो तो हम secondary prefix नहीं लगाएंगे. तो they are conditional. They may or they may not be present in the IUPAC name, but word root and primary suffix will be there for sure. Right? चलिए, we'll start with the IUPAC nomenclature, और हम start करते हैं सबसे simple IUPAC nomenclature से, IUPAC nomenclature of unbranched alkanes. IUPAC nomenclature of unbranched alkanes. Right? So if I'm saying they are alkanes, this means they have all carbon-carbon single bonds. कोई भी multiple bond उनमें present नहीं होगा. And because they are alkane, इनका जो primary suffix हो जाएगा, that will be of course ane. तो इनमें जो हम primary suffix use करेंगे वो हो जाएगा ane. Right? Now they are unbranched. Unbranched का मतलब कोई भी substituent नहीं है. अगर कोई substituent नहीं है इसका मतलब हम उसमें secondary prefix use नहीं करेंगे. Because I'm talking about alkanes which are open chain compounds, we've already studied the classification of organic compounds. Alkanes are open chain compounds, so we need not to use the primary prefix cyclo. Why? Because we are talking about alkanes, the open chain compounds. तो इसमें primary prefix use नहीं हो रहा है, इसमें secondary prefix नहीं use हो रहा है, because कोई substituent नहीं है, कोई branches नहीं है, कोई side chains नहीं है, they are unbranched. इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए इसमें सेकेंडरी सफिक्स भी यूज नहीं होगा. तो ये सबसे सिंपल टाइप का नॉमेनक्लेचर होगा जहां पर द एसेंशियल पार्ट्स आर ओनली यूज्ड. एल्केन्स है तो प्राइमरी सफिक्स एन हो जाएगा, और जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पर we'll assign them what? A word root. Right? So we can take some examples of unbranched alkanes. For example, the simplest, CH4. Right? It has one carbon atom. For one carbon atom the word root will be meth, and because I'm talking about a saturated hydrocarbon,
the suffix I'll use is in. Right? This is the method of writing their name. The first alphabet has to be capital and there will be no gap between the word root and the primary suffix. कोई gap नहीं होगा. The entire name will be written as one word. Right? We can take some more example. Maybe CH3, CH3. So 2 carbon atoms. So eth, in, ethane. Right? Similarly, maybe CH3, CH2, 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 CH3. How many number of carbon atoms? 5. The word root for 5 is pent and the suffix will be ane. So it will be pentane. Right? Maybe CH3, CH2 whole twice 8, CH3. Right? So instead of writing CH2 8 times, I've written CH2 whole twice 8. That means there's one CH3 in the beginning, there's one CH3 at the other end, and in between the two methyl groups there are 8 CH2 groups. तो अगर हम total number of carbons इसमें add करें या देखें तो 8, 9 and 10 carbon atoms. For 10 we use the word root decane, dec, and the name will be decane. Right? So this is the unbranched alkanes. IUPAC nomenclature of unbranched alkanes. बहुत simple है, कुछ नहीं करना है. Number of carbon atoms total count कीजिए. Because they are unbranched, वो straight line में ही attached होंगे, straight chain की form में. Number of carbon atoms count कीजिए, corresponding word root लिखिए. उसके बाद because they are alkanes, they are saturated. Suffix का कोई option नहीं है. It has to be ane. तो word root के बाद without any gap ane लिख दीजिए. The first alphabet of the name will be capital. Right? Very simple rules, very simple nomenclature. चलिए आगे बढ़ते हैं. कुछ अलग सा केस लेते हैं which is important, जिसमें थोड़े से rules भी आ जाएंगे, थोड़े complications भी आ जाएंगे. We will deal with the IUPAC nomenclature of branched chain alkanes. Right? फिर से alkane की ही बात कर रही हूँ, मतलब saturated hydrocarbon की बात कर रही हूँ. तो जो bonds होंगे they will be all carbon-carbon single bonds. Right? But this time I'm talking about branched alkanes. Branched alkanes का मतलब वहां पर side chains होंगी, वहां पर branches होंगी. तो आप पूरे compound को एक straight chain की form में नहीं लिख सकते. Right? चलिए जब हम branch chain alkanes की हम बात करते हैं, because they are branched, मैंने कहा कुछ side chains हैं, कुछ branches हैं, which are written in the form of secondary prefix. Substituents को जो हम लेते हैं वो secondary prefix के form में लेते हैं. तो word root आ जाएगा, जितने number of carbon atoms आप parent chain में include करोगे उसके basis पर ane लगाएंगे हम primary suffix और secondary prefix आ जाएगा जो भी substituents है उसके form में. This will become more clear as we take the examples. But before that, आपके पास तीन parts हैं. The secondary prefix, the word root and the primary suffix. And they have to be arranged in this very sequence. मतलब ये जो 5 parts है IUPAC नेम के, इनकी एक particular sequence है. जैसे यूजुअली हमारे नाम में होता है कि मुझसे कोई मेरा नाम पूछेगा या मुझे कहीं लिखना होगा तो I'll write पूनम and then I'll write लखानी. मतलब I'll write my primary name first followed by my surname or the secondary name. This is the most common sequence that we follow. Right? वैसे ही ये जो 5 parts है IUPAC नेम के, इनकी भी एक sequence है कि अगर आपको ऐसा कोई कंपाउंड दे दिया जिसके IUPAC नेम में all the 5 parts are being used, तो उनकी सीक्वेंस आप क्या रखोगे? सबसे पहले उनकी सीक्वेंस होगी the name will begin with the secondary prefix, then primary prefix, then word root, then the primary suffix and then the secondary suffix. So this is a sequence that has to be used. आप इसे change नहीं कर सकते. चेंज नहीं कर सकते मतलब वर्ड रूट और अगर प्राइमरी सफिक्स है, जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल लिए हैं अनब्रांच्ड एल्केन्स के जिसमें वर्ड रूट था और जिसमें प्राइमरी सफिक्स यूज हो रहा था. तो द सीक्वेंस इज फर्स्ट यूल राइट द वर्ड रूट देन यूल राइट द प्राइमरी सफिक्स. यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. आप CH4 को एन मेथ नहीं लिख सकते, कभी नहीं पढ़ा है हमने, कभी हम पढ़ेंगे भी नहीं. राइट? तो ये एक सीक्वेंस है कि अगर 5 पार्ट्स आ रहे हैं तो सेकेंडरी प्रीफिक्स आप सबसे पहले लिखोगे, यानी सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट्स को लिख दोगे जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं.
राइट। फिर आप मेंशन करोगे कि साइक्लो अगर है तो आप साइक्लो लगा दोगे वहां पर, फिर वर्ड रूट आएगा, फिर एनीन, आयन, सैचुरेशन, अनसैचुरेशन का आएगा, फिर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो आएगा सबसे एंड में, राइट। तो जब हम ब्रांच चेन एल्केन्स की बात करते हैं, इन 5 पार्ट्स में से जो हमें काम में आने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली कार्बन एटम्स होंगे इसलिए वर्ड रूट तो आएगा ही आएगा, एल्केन एन सफिक्स लग जाएगा, प्राइमरी सफिक्स, और क्योंकि हम ब्रांच चेन्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए वहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स भी होंगे, यानी प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स भी लगेगा। और सीक्वेंस जो हमें रखनी है वो यही रखनी है कि पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट्स लिखने हैं, पहले आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है, उसके बाद आप वर्ड रूट लिखोगे, उसके बाद आप प्राइमरी सफिक्स लिखोगे। Now there are some rules governing the IUPAC nomenclature of branched alkanes, और ये रूल्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन रूल्स को हमें लर्न करने की जरूरत कभी नहीं होती अगर हम इनकी प्रैक्टिस करते रहें तो। इफ यू आर इन कंटिन्यूएशन विद द प्रैक्टिस, आप अगर जैसे मैथ्स की तरह है, IUPAC इज लाइक आपको लर्न नहीं करना है, you don't have to mug up the IUPAC names, you don't have to learn by heart the IUPAC names। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो रूल्स अपने आप आपको याद होंगे, उनका एप्लीकेशन आपको अपने आप समझ में आएगा, उनके एक्सेप्शंस आपको अपने आप समझ में आएंगे और उनको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो फर्स्ट रूल, द वेरी फर्स्ट रूल ऑफ ब्रांच चेन एल्केन्स इज द लॉन्गेस्ट चेन रूल। Longest chain rule. Now this rule says, this is the very first rule, आपको चेन सिलेक्ट करनी है, आप इसको चेन सिलेक्शन रूल भी कह सकते हैं। चेन सिलेक्ट करनी है और चेन ऐसी सिलेक्ट करनी है जो कि लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, मतलब उससे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसी चेन में इंक्लूड नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स शुड बी इंक्लूडेड, पर वो चेन कंटिन्यूअस होनी चाहिए और वो चेन सिर्फ कार्बन एटम्स की ही होनी चाहिए, राइट। सो बेस्ड ऑन दीज 3 क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया है? फर्स्ट क्राइटेरिया इज द चेन शुड बी लॉन्गेस्ट, सेकेंड इज द चेन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, थर्ड द चेन शुड बी ओनली ऑफ कार्बन एटम्स। तो जब हम ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो करते हैं और इनके बेसिस पर चेन सिलेक्ट करते हैं, दैट चेन इज नेम्ड एज, इट इज टर्म्ड एज द पेरेंट चेन और इट इज टर्म्ड एज द मेन चेन, राइट। अब इन तीनों का मतलब क्या है, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं कि नीचे स्टार्ट करते हैं, चलिए, कार्बन एटम्स, तो हमें समझ में आ रहा है, जैसे आपने लिखा CH3 CH2 CH CH3 CH3, इस तरीके से आपने बनाया, हम हाइड्रोजन बीच में लिख रहे हैं, बट दिस इज ओनली अ मेथड ऑफ राइटिंग, इट इज द कंडेंस्ड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। एक्चुअली में क्या है, कार्बन है, 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, इससे 1 हाइड्रोजन, ऑन द अदर साइड द अदर कार्बन, उससे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, इस तरीके से, और फिर एक कार्बन आ गया जिससे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो इसको हम इस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं। आपको इसमें चेन सिलेक्ट करनी होगी तो आपको सिर्फ कार्बन एटम्स की चेन सिलेक्ट करनी है, तो आप इस तरीके से चेन को सिलेक्ट कर लोगे, राइट। यूजुअली हम कंडेंस्ड फॉर्मूला ही लिखते हैं, तो हम चेन आप देखोगे तो इस तरीके से सिलेक्ट होगी, अगर आप कोई बुक्स रेफर करोगे, एग्जाम्पल्स रेफर करोगे तो उसमें इस तरीके से होगी, बट दिस डजंट मीन कि हाइड्रोजन को भी हमने काउंट करना है या हाइड्रोजन को भी हमें मेन चेन में लेना है, वो तो लिखने का तरीका अलग है, इसलिए इस तरीके से हमने चेन सिलेक्ट कर ली, राइट। तो आपको चेन सिर्फ कार्बन एटम्स की सिलेक्ट करनी है। सपोज मैं इस कंपाउंड में थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं इसको इस तरीके से कर दूं, CH3 CH2 ऑक्सीजन लगा दूं बीच में, फिर लगा दूं CH CH3 CH3, नाउ आई कांट सिलेक्ट दिस स्ट्रेट चेन, आई कांट डू दैट, मैं इस चेन को सिलेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि इस चेन में क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गया बीच में, राइट। तो रूल लगाऊंगी, जो भी रूल है रूल लगाऊंगी, और मैं सिर्फ कार्बन की या तो ये वाली ले लूं या मैं ये ले लूं, वो रूल है, ठीक है। तो वो आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, तो उस रूल के बेसिस पर आप लेकिन लोगे सिर्फ कार्बन एटम्स की, ठीक है। सेकेंड इज कंटिन्यूअस और उसके बाद है लॉन्गेस्ट चेन, राइट। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, जब हम बोल रहे हैं कि चेन शुड बी कंटिन्यूअस, कंपाउंड में तो कभी कोई ब्रेक आएगा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि आपको एक टूटा हुआ कंपाउंड मिल जाए, वो तो कभी कंपाउंड का ऐसे तरीके से नहीं हो सकता। फिर कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, राइट। कंटिन्यूअस का मतलब है, जैसे यही इसी एग्जाम्पल के साथ हम कंटिन्यू करते हैं, मैं सिर्फ स्केलेटन बना रही हूं, इस तरीके से ये कंपाउंड बनाया हुआ है,
आपने बोला IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है, मैम का लेक्चर सुना था, मैम ने कहा था लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो, कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो। तो ऐसा करते हैं, सारी कार्बन एटम्स को इंक्लूड कर लेते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा लॉन्गेस्ट तो कोई हो नहीं सकती। आपने सारी कार्बन इंक्लूड कर ली, ये लॉन्गेस्ट है, ये चेन कार्बन एटम्स की है, बट दिस चेन इज नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस इन द सेंस, अब सेकेंड रूल जब हम पढ़ेंगे तो वो होगा नंबरिंग से रिलेटेड, कि आपने जो चेन सिलेक्ट करी है, जो कार्बन एटम सिलेक्ट किए हैं इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट चेन, उनको आपको एक एंड से दूसरे एंड नंबर करना है, 1 2 3 4। वो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, वो कैसे होगा उसके भी रूल्स है। बट सपोज इस कंपाउंड में हमें नंबरिंग करनी है, कहीं से भी करनी है, ठीक है, सपोज हम लेफ्ट टू राइट ही कर देते हैं, अब वो सही है नहीं वो तो हम बाद में देखेंगे। सपोज नंबरिंग करनी है कार्बन एटम्स को, तो आई स्टार्ट द नंबरिंग। इसको मैंने बोला 1 2 3, यहां तक तो ठीक है। नाउ आफ्टर 3, दिस थर्ड कार्बन एटम, आई हैव 2 ऑप्शंस। आइदर आई कैन गो स्ट्रेट, आई कैन नंबर दिस कार्बन एज 4। अगर मैं इसको 4 देती हूं, या ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है मेरे पास, आई कैन गो डाउन, इस डायरेक्शन में चली जाऊं, मैं इसको 4 बोल दूं, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेट जाती हूं और मैं इस कार्बन को 4 देती हूं, ये कार्बन छूट जाएगा बाहर। अब इस कार्बन से आई कैन नॉट जंप डायरेक्टली टू दिस कार्बन बिकॉज देयर इज नो बॉन्ड। व्हाट आई विल डू, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं वापस इस कार्बन पर जाती हूं। अगर मैं वापस इस कार्बन पर जाती हूं, शुड आई नंबर इट 5, बिकॉज मैं उसको दोबारा से काउंट कर रही हूं। हो गया ब्रेक, राइट। अगर मैं नीचे जाती हूं तो सेम प्रॉब्लम विल अराइज, मैं इसको 4 बोल दूंगी तो ये कार्बन छूट जाएगा। मैं इस पर डायरेक्टली नहीं जा सकती बिकॉज दे आर नॉट बॉन्डेड टुगेदर। आई कैन नॉट रिपीट अ कार्बन एटम, मैं वापस इस पर नहीं जा सकती। गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो ब्रेक होने का मतलब है, या डिसकंटिन्यूअस होने का मतलब है, आप जो आपने चेन सिलेक्ट करी है पेरेंट चेन, उसे एक एंड से दूसरे एंड, मे बी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, वट एवर एज पर द रूल, एक एंड से दूसरे एंड कंटिन्यूअसली नंबर नहीं कर पा रहे हो, तब हम बोलते हैं कि चेन क्या हो गई, ब्रेक हो गई, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। सो ऑल्दो जो हमने इसमें चेन सिलेक्ट करी थी कंपाउंड में, वो कार्बन एटम्स की थी, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, वो लॉन्गेस्ट थी, सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड, बट द चेन वॉज नॉट कंटिन्यूअस। आई कुड नॉट नंबर द कार्बन एटम्स इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन एंड टू द अदर, और इसीलिए ये चेन क्या मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी, राइट। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, एंड इट शुड बी ऑफ कार्बन एटम्स ओनली। तो अगर ये तीनों मैं इसमें अप्लाई करती हूँ रूल्स इस कंपाउंड में, तो आई सिलेक्ट अ स्ट्रेट चेन, और ये मेरी कंटिन्यूअस होगी 1 2 3 4 कार्बन एटम्स विद 1 ब्रांच। जो भी चेन के बाहर छूट जाएगा, ये ग्रुप छूट गया चेन के बाहर, दिस विल बी द सब्स्टिट्यूएंट, द साइड चेन, द ब्रांच, राइट। ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिया था, ऑल्दो ये एल्केन नहीं है, इस पे फंक्शन ग्रुप आ गया, पर मैं आपको सिर्फ चेन पर फोकस करना सिखा रही हूं। तो ये वाला जो कंपाउंड लिया था, इसमें द चेन आई सेलेक्ट इज दिस 1 2 3 कार्बन एटम्स। अगर आप ये चेन लेते हो तो 2 ही कार्बन एटम्स है, स्ट्रेट तो आप ले नहीं सकते बिकॉज ऑक्सीजन इज देयर, तो आप ये 3 कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। वी कैन टेक सम मोर एग्जाम्पल्स, राइट। तो मे बी ऐसा कोई कंपाउंड है, मैं स्केलेटन ही बना रही हूं बिकॉज आप सबको पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसीज है, और सेटिस्फाई करना है, एक बॉन्ड इसने इधर बना लिया तो आप H3 लगा दोगे, एंड सो ऑन, यू विल कीप ऑन सेटिस्फाइंग द वैलेंसीज, राइट। तो अगर इसमें मुझे चेन सिलेक्ट करनी है, कैसे देखें ऑप्शंस, हम मे बी स्ट्रेट चेन लेते हैं। तो अगर स्ट्रेट चेन लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 carbon atoms. If I go for a straight chain, there are 6 carbon atoms. The other option is I can go from here to here. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8 greater than the earlier one. इसको लेते हैं तो 8 आते हैं, और मे बी यहां से स्टार्ट करके यहां तक चलते हैं तो 1 2 3 4 5 ही आ रहे हैं, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वील गो फॉर द मैक्सिमम वन विथ 8 कार्बन एटम्स। तो जो चेन सिलेक्ट होगी वो ये होगी, ठीक है। कीप इन माइंड चेन की शेप कोई भी हो सकती है, इट कैन बी अ स्ट्रेट चेन,
इट कैन बी, जैसे अभी मैंने सिलेक्ट करी इस तरीके से, इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, मे बी लाइक दिस, इट कैन बी एल शेप्ड, इन्वर्टेड एल, किसी भी तरीके से हो सकती है, ठीक है। शेप डिसाइडेड नहीं है, इस तरीके से ऐसे हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट जस्ट रिमेंबर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, दैट्स इट, ठीक है। चलिए लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मे बी वी हैव अ कंपाउंड लाइक दिस, तो इसमें चेन सिलेक्ट करनी है, क्योंकि हम चेन सिलेक्ट कर लेंगे यहां से स्टार्ट करते हुए यहां तक, दैट विल बी द मैक्सिमम, तो ये आ जाएगी। आप ऑप्शन सारे ट्राई कर सकते हैं, और बेटर यही होता है कि जब भी हम नॉमेनक्लेचर करें वी यूज अ पेंसिल फॉर दैट, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती नॉमेनक्लेचर की, रूल्स बहुत अच्छे से याद नहीं होते हैं, हमको पता नहीं होते हैं, तो आप चेन बहुत बहुत अनटाइडी सा वर्क करते हो, राइट, उसमें और कंफ्यूजन्स बढ़ जाते हैं। यूज अ पेंसिल, बिकॉज अगर आपने चेन ही गलत सिलेक्ट कर ली, सबसे पहला स्टेप ही गलत कर दिया, तो उसके बाद तो चेक करने की जरूरत ही नहीं होती, वो नाम डेफिनेटली गलत होगा। फिर आप कोई भी वर्ड रूट लगाओ, कोई भी सफिक्स लगाओ, कुछ भी करो, जब आपने पहला ही स्टेप गलत कर लिया, डेफिनेटली जो आईयूपीएससी नेम आप लिखोगे वो गलत ही होगा, राइट। तो पेंसिल से कीजिए आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर को। पहला है रूल चेन सिलेक्ट करने का, ट्राई ऑप्शंस, स्ट्रेट चेन लेकर देखो, कोई और शेप की चेन लेकर देखो, कहीं और से स्टार्ट करो, कहीं और एंड करो, सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करके देखो, और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन फिर आप सिलेक्ट करो एज द पेरेंट चेन, राइट। चलिए we'll come on to the second rule of IUPAC nomenclature, that is the lowest number rule or the lowest sum rule. Lowest number rule or the lowest sum rule. Although ये रूल बहुत जगह फॉलो नहीं होता है, उसकी जगह हम यूज करते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंस, इस तरीके से रूल यूज करते हैं। सम रूल बहुत जगह अप्लाई नहीं होता, बट स्टिल एज अ बिगिनर अगर आप आईयूपीएससी स्टार्ट ही कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ नहीं पता है, तो हम ये रूल पढ़ लेते हैं, लोएस्ट नंबर रूल और लोएस्ट सम रूल। दिस रूल इज रिलेटेड टू नंबरिंग। जो पेरेंट चेन आपने सिलेक्ट करी है, दे हैव टू बी नंबर्ड फ्रॉम वन एंड टू द अदर एज 1 2 3 4 and so on, such that the carbon atom carrying the substituent gets the lowest number. मतलब जो चेन आपने सिलेक्ट करी है एज द पेरेंट चेन, उसको आपको एक एंड से दूसरे एंड तक नंबर करना है 1 2 3 4 के फॉर्म में, और वो नंबरिंग इस तरीके से होनी चाहिए, किस एंड से शुरू करोगे, लेफ्ट टू राइट चलोगे, राइट टू लेफ्ट चलोगे, कहां से कहां तक चलोगे, ये डिसाइड होगा जिस कार्बन एटम पर ब्रांच अटैच्ड है, जिस कार्बन एटम पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, राइट। और जो नंबर डिनोट करेगा उस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को, जो नंबर उस कार्बन एटम को डिनोट करेगा जिस पर ब्रांच अटैच्ड है, दैट नंबर इज नोन एज द लोकेंट, number denoting the position of the substituent, location of the substituent, that is known as a locant. तो ये जो previous example था ये वाला, इसमें हम इस रूल को अप्लाई करते हैं। हमने चेन तो सिलेक्ट करी ली, दिस इज आवर मेन चेन। अब इसमें हमारे पास नंबरिंग के दो ऑप्शंस हैं, मे बी हम यहां से नंबर कर सकते हैं एज 1 2 3 4 5 6 7 and 8। अगर हम ये नंबरिंग फॉलो करते हैं तो इसमें द कार्बन एटम कैरिंग द सब्स्टिट्यूएंट, उसका लोकेंट है 4, राइट। हम दूसरे एंड से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8। This time the carbon atom carrying the substituent is getting the locant 5। तो रूल ये कहता है कि जिस नंबरिंग में सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिले वो सही है, तो इसका मतलब ये वाली नंबरिंग डन विद द येलो कलर, दैट इज द करेक्ट नंबरिंग, राइट। तो ये जो कंपाउंड होगा ये यहां से नंबरिंग करना हम शुरू करेंगे एंड वील एंड अप हियर, ओके। और इसके लिए लोकेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। दिस इज द लोएस्ट नंबर रूल। नाउ ये तो एक ऐसा कंपाउंड था जिसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट था, मे बी कंपाउंड बहुत बड़ा हो और उसमें सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल
लेट्स से इस तरीके का कोई कंपाउंड है, राइट। तो हमने इसमें सबसे पहला रूल लगाया कि हमें चेन सिलेक्ट करनी है, और एज पर द रूल हमने स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर ली। ठीक है, ये हमारी मेन चेन हो गई, पेरेंट चेन हो गई। अब हमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग हमारे पास अगेन 2 ऑप्शन है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो लेट्स से हम यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ इस कंपाउंड में देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, 4 ग्रुप्स आ रहे हैं चेन के बाहर, 1 इज दिस, द अदर इज दिस, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे लोएस्ट सम रूल। ठीक, ये जो जितने भी लोकेंड्स हैं इन सारे सब्स्टिट्यूएंट्स के, हम उनका सम निकालेंगे। तो अगर हम ये यहाँ लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं, तो एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 3 पर, दूसरा भी 3 पर आ रहा है, एक आ रहा है 4 पर, एक आ रहा है 5 पर। तो सम विल बी 3 + 3 + 4 + 5, दैट मेक्स 15, राइट। दूसरा ऑप्शन है, हम जा सकते हैं राइट टू लेफ्ट। तो लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसमें जो हमारे लोकेंड्स आ रहे हैं, 1 इज 4, द अदर इज 5, देन 6 एंड देन 6। इसमें जो सम आ रहा है वो आ रहा है 21, राइट। तो लोएस्ट सम रूल फॉलो करते हुए नंबरिंग जो करेक्ट हो जाएगी वो लेफ्ट टू राइट, ये नंबरिंग करेक्ट हो जाएंगे। ओके, वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल मे बी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से द कंपाउंड इज दिस। ठीक है, तो इसमें हम चेन कौन सी सिलेक्ट करेंगे? लेट्स ट्राई दी ऑप्शंस। ओके, लेट्स से फर्स्ट चेन स्ट्रेट चेन ले गए, तो 1 2 3 4 5। चलिए और कुछ ट्राई करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें आ रहे हैं 7। ठीक है, यहां से चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 अगेन। बहुत सारी चेन्स आ रही हैं जिनका क्या आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है। देन यू हैव टू अप्लाई सम अदर रूल। ठीक है, तो ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल हो गया। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, कोई सिंपल सा भी एग्जाम्पल लेते हैं, इसका रूल मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगी। से लाइक दिस, तो 1 2 3 4 5 6 in the straight chain, 1 2 3 4 5 6 in this, 1 2 3 4 5 6 7 in this। तो जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी वो ये हो जाएगी, राइट। और इसमें अगर हम नंबरिंग करेंगे तो वील स्टार्ट फ्रॉम हियर, 1 2 3 4 5 6 7, लोकेंट आ रहा है 4। हम यहां से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, दोनों साइड से 4 आ रहा है, आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द लोएस्ट नंबर रूल।